Assalamu alaikum. I'm Muhammad Abdul Rahman from Park Pure Line. First of all, as usual, I will introduce Park Pure Line. Park Pure Line is a modern and innovative concept of food quality and safety solutions. We are working in two domains like food safety and halal. So under these domains, we are working on different projects like we are offering consultancy services to industry and private sector as well. Along with that, we're also offering our R&D services and training services to private sector and public universities. So this is the little introduction about Park Pure Line. Also, we have started our production unit here in Faisalabad. Soon, inshallah, we will market with our own brand name. So this was little introduction about Park Pure Line. So Park Pure Line is working in collaboration with the different public and private sector organizations on these projects there that I have described to you. So these are different organizations. We have collaborative working with these. So as I've already told you people that we are going to launch our own brand. And so soon, inshallah, you will see in market different spice products of Park Pure line. Okay, as far as the topic of today's training, that is the sensory evaluation of food products. Inshallah, we will discuss in detail regarding the sensory evaluation techniques, different mechanisms, what is sensory evaluation, the requirements of sensory evaluation, the selection of sensory panelists, what are the criteria for their selection, and the requirements of a sensory evaluation room. Then the types of sensory testing, different tests are conducted that are different tests, rating test, sensitivity test, descriptive test. So we will elaborate the description of all these tests. Then the techniques for the sensory evaluation of different foodstuffs will also be discussed in the training. Okay, first of all, we will see that what is sensory evaluation. Any one of you can elaborate about the sensory evaluation? Sensory evaluation means just the something with your visual sense or touch or smell, using your senses. Okay. One person is saying that by using senses we judge the quality. Definitely, that's correct. So we will thoroughly study in later on that what is मिलियन में आप डालते हैं मतलब 1 किलोग्राम हो गया science. First of all, let we say सैंपल को आप let we 2500 लीटर का टैंक हो science. That what is sensory science? Sensory science basically shows the ways in product development and quality control. When we talk about any food product development, its quality control, its research and development, that is R&D perspectives, definitely we talk about the sensory evaluation. So as the word depicts, that sensory means all the senses that humans use, like touch, like smell, like vision, like hearing. All these are concerned with the central nervous system of human beings. So when we consider any quality control perspectives or any R&D perspectives of food products, so we consider all these senses to formulate the different food items or food products for the purpose of quality control or R&D. So all these decisions that we consider regarding the sensory evaluation, that what
the flavor of that product should be, or what that product must look like, what should be its color, what should be its flavor, what should be its texture. So all the decisions will influence the final product attributes or characteristics. Okay. So let me talk about the sensory evaluation. By definition, the sensory evaluation is a scientific discipline that analyzes and measures human responses to the composition of food and drink that is under consideration, like its appearance, like its feel, that we may say in terms of touch, its odor, its flavor, its texture, its temperature. So all these characteristics are considered while studying the sensory evaluation perspectives of any food product. So commonly we use five senses: that touch, that vision, that smell, that hearing, and that eating or tasting that food commodity. So we use these perspectives to study the sensory evaluation of the food products. So basically, how humans experience their food is considered by these five senses. That फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं कि हम अपने फूड प्रोडक्ट को टेस्ट वाइज कैसा कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेस्ट दैट फूड प्रोडक्ट. तो उसमें ये होता है कि बेसिक टेस्ट उसका देखा जाता है, लाइक स्वीट टेस्ट है, सॉर टेस्ट है, साल्टी है, बिटर है, उमामी टेस्ट है, या स्पाइसी है, या अस्ट्रिंजेंट है. मीन्स टू से कि उसकी पंजेंसी फील हो रही है टेस्ट पे हमें ज़ुबान के ऊपर. सो इसके अलावा उस प्रोडक्ट का फ्लेवर जो है, फ्लेवर प्रोफाइल को कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ फुलनेस, दैट इज़ थिकनेस, और व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वो कैसा अरोमा शो कर रही है. उसके अलावा उसकी पैलेटेबिलिटी को देखा जाता है कि उसकी टेक्सचर प्रोफाइल कैसी है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का इंटरनल टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसका टेक्सचर भी डेवलप होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसका अरोमा भी डेवलप होगा. देन उसका कलर कैसा है उस प्रोडक्ट का, टेम्परेचर और कलर का डायरेक्ट वे में रिलेशन है. इसी तरह उसकी ग्लॉसीनेस, उसकी शाइनिंग कैसी है, प्रोडक्ट की शेप कैसी है, उसकी पैलेटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करेगी. देन उस प्रोडक्ट का सम स्पेसिफिक फूड कमोडिटीज़, उसका साउंड भी देखा जाता है, लाइक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग हीट प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग अदर प्रोसेसिंग सम फूड प्रोडक्ट्स में emit some specific kind of sound, like during roasting, इसमें साउंड को हम कंसिडर कर सकते हैं. इसी तरह ओवरऑल फूड एक्सेप्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी कंडीशंस, दैट जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हॉल की जो ओवरऑल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस हैं, सभी इस चीज़ को उसकी फूड एक्सेप्टेबिलिटी को डिटरमिन करेंगी. देन हैबिचुएशन, लाइक सोशल सिचुएशन कैसी है, कल्चर, उस एरिया का कल्चर जहाँ पे उस खास कमोडिटी को, उस प्रोडक्ट को कंसिडर किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है. सो इसके अलावा पर्सनल कंडीशन, पर्सनल मूड और हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा ओवरऑल उस फूड कमोडिटी की एक्सेप्टेबिलिटी को. सो दीज आर the factors that we may consider while determining the overall food acceptability of any food product. So it is directly linked with the human senses. So 5 senses जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, या लेटर ऑन स्लाइड्स में जिनकी हम बात करेंगे, वो सभी इसी फूड एक्सेप्टेबिलिटी के गिर्द घूमती हैं. ओके, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम जो सेंसेस की बात करते हैं उसमें ख़ास तौर पे अरोमा और टेस्ट की बात करते हैं. तो उसके बिहाइंड साइंस क्या है, हम ह्यूमंस कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को फील करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की खुशबू को फील करते हैं, या उसके टेस्ट को कैसे फील करते हैं. बेसिकली 2 कंसेप्ट्स हैं, जिसमें ऑल्फैक्शन है और जिसमें
माउथ फील है, ठीक है, टेस्ट को डिटेक्ट करना। सो ऑल्फैक्शन, इसका जो सेंसरी पार्ट है वो नोज है। नोज के अंदर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नोज में ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स होते हैं, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम है जिसका डायरेक्ट लिंक है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे ब्रेन के साथ। सो ऑल्फैक्ट्री जो ऑर्गन्स हैं, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम है, उसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे कॉर्नर लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे कि जो ऑर्डर है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम के ऊपर सीलिया और स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस ऑर्डर को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए फर्दर वो एक ऑल्फैक्ट्री बल्ब के थ्रू, ऑल्फैक्ट्री नर्व्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देते हैं। उसके ऊपर हमारा सीएनएस रिस्पॉन्ड करता है, उस रिस्पॉन्ड के नतीजे में हमें वो बताता है, गाइड करता है कि फर्दर ये ऑर्डर कैसा है और उसके अगेंस्ट हमने कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसी कमोडिटी के टेस्ट की, तो टेस्ट जो है वो भी हम टंग के ऊपर उसको कंसिडर करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो मुख्तलिफ एपिथेलियम हैं टंग के, वो रिसीव करते हैं उस टेस्ट को, फूड सीलिया उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद टेस्ट रिसेप्टर्स और नर्व फाइबर्स उस टेस्ट को, उस सिग्नल को, उस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कन्वे करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वहाँ से रिसीव जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है उस सेंस को, उस ऑर्गन को, कि इसका टेस्ट डिस्क्राइब किया जाए कि फ़लाँ टेस्ट है इसका। सो दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड डिटेक्टिंग द odor and taste of some specific food product. ओके, हम बात करते हैं कि हमारी ज़ुबान कौन सा टेस्ट कहाँ पे किस एरिया में डिटेक्ट करती है। What part of your tongue taste what? The taste buds for sweet are on the tip of the tongue. मीठा टेस्ट जो है आपकी ज़ुबान की टिप जो है उसके ऊपर डिटेक्ट होता है। इसी तरह जो साल्टी फ्लेवर है वो टिप की साइड्स के ऊपर डिटेक्ट होता है। जो सॉर टेस्ट है वो बैक लोअर साइड्स के ऊपर डिटेक्ट होता है। इसी तरह जो पाथवे फॉर इनगल्फिंग है उसके ऊपर बिटर टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें, जो भी एक सेंसरी साइंटिस्ट है, सेंसरी इवैल्यूएशन एक्सपर्ट है, उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ व्हाई यूज सेंसरी एनालिसिस। सेंसरी एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका क्या मकसद है सेंसरी एनालिसिस का और सेंसरी इवैल्यूएशन का। जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योरेंस की, किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा इन सभी चीज़ों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लिंक होता है। जब भी हम इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी क्वालिटी इंश्योरेंस ग्रुप का पार्ट बनेंगे, किसी R&D जो टीम है उसका पार्ट बनेंगे, किसी ऑडिट का पार्ट बनेंगे, किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट बनेंगे। हमें किसी ना किसी वे में सेंसरी इवैल्यूएशन को देखना होता है। फॉर एग्जांपल, टू इवैल्यूएट क्वालिटी इन क्वालिटी कंट्रोल और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमें किसी ना किसी पार्ट पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लाइक उसका टेस्ट कैसा रखना है, उस प्रोडक्ट का फ्लेवर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा इंग्रेडिएंट सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्ट फार्मूलेशन, प्रोडक्ट की रेसिपी फार्मूलेशन में हम देखते हैं कि नए से नए इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस कराना है टू सम एक्सटेंट रिगार्डिंग दी इकोनॉमिकल कंसर्न्स, लाइक हमें कोई प्रोडक्ट इंप्रूव करनी है इकोनॉमिक वाइज, लाइक हमें कोई प्रोडक्ट इंप्रूव करनी है टेस्ट वाइज, हमें कोई प्रोडक्ट को उसका फ्लेवर इंप्रूव करना है, उसका माउथ फील इंप्रूव करना है, या ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी को हमने देखना है किसी भी सेंस में। उस केस में हमें जो है प्रोडक्ट को सेंसरी इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजारना है। इसी तरह से कुछ कंपनीज नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं
मार्केट में कई कंपेटिटर्स बैठे हैं उस प्रोडक्ट के, जिनकी ऑलरेडी वो प्रोडक्ट दस्तयाब है, मार्केट में चल रही है। सो कंपनीज सेंसरी वैल्यूएशन के टूल्स को इस्तेमाल करती हैं टू कंपेयर दी प्रोडक्ट्स विद देयर कंपेटिटर्स। अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना मकसद है कि उस प्रोडक्ट का कलर किसी खास टेम्परेचर पे फेड नहीं होता, हमारी प्रोडक्ट अगर हो जाता है तो उसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर जिसको हमने एवेलुएट करना है। सो उसके लिए भी हमें फिर सेंसरी वैल्यूएशन को कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ स्टडी है उसमें भी सेंसरी वैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब हम सेंसरी वैल्यूएशन स्टडी की बात करेंगे कि सेंसरी वैल्यूएशन स्टडी कैसे की जाती है। उसके लिए सेंसरी वैल्यूएशन प्लान डिफाइन किया जाता है, जिसमें डिफाइन द ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। रिटन फॉर्म में सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, एम क्या है। देन डिफाइन द टेस्ट ऑब्जेक्टिव, जिस चीज़ को हम एज अ टेस्ट केस कंसिडर करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पैरामीटर को हमने टेस्ट करना है, कैसे करना है। फिर स्क्रीनिंग दी सैंपल्स, सैंपल्स को हम कैसे स्क्रीन करेंगे, सैंपल्स की टेस्टिंग कैसे करेंगे। आइदर लेबॉर्ट्री में डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू उसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको सेंसरी पर्सपेक्टिव के हवाले से कंसिडर करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट मेथड एंड पैनल, कौन सा टेस्ट मेथड कंसिडर करेंगे और पैनल में एक्सपर्टीज़ कौन सी होंगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उसके अलावा उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होंगी, ये तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। फिर टेस्ट को एक्चुअल वे में कंडक्ट किया जाता है टेस्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है। देन जो हमारे पास डाटा आया उस डाटा को प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज हम विजुअल ऑब्जर्वेशन की बेस पे भी कर सकते हैं या अदर 5 सेंसेस जो हैं उनकी बेस पे भी हम कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे पास सेंसरी वैल्यूएशन में डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डाटा को प्रोसेस और एनालाइज कर सकते हैं। देन रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है, कैसे करना है उसका भी बाकायदा मैकेनिज्म डिज़ाइन होता है। देन जो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं और जो स्टैंडर्ड डाटा है, जो हमारे पास कंट्रोल रीडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उसको करेक्टिव एक्शन क्या लेना है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट में हमने फर्दर अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे प्लेस करनी है। फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोजेक्ट में एज अ ऑडिटर काम कर रहे हैं, एज एन इंटरनल ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो हमने फिर उस प्रोजेक्ट में रहते हुए जो हमारी जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस को कैसे प्लेस करना है। सो दिस इज द होल प्लान। Okay, now we will talk about the requirements, the sophisticated sensory booths और rooms। जो सेंसरी एनालिसिस के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के बूथ्स बनाए जाते हैं, रूम्स बनाए जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले लेबॉर्ट्री फॉर फिजिकल केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉ एंड प्रिपेयर्ड फूड। हमारे पास एक लैब की ज़रूरत है, हमें उसके मुख्तलिफ फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स को हमने एनालाइज करना है। देन सूटेबल एरिया फॉर प्रेपरेशन ऑफ फूड सैंपल्स फॉर इवैल्यूएशन। हमने जो इवैल्यूएशन करनी है उसके लिए हमें एक टेस्ट मटेरियल चाहिए, एक सैंपल चाहिए। सैंपल की प्रेपरेशन कैसे करनी है, हमारे पास एक यूनिट हो, हमारे पास एक पायलट प्लांट हो, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में मतलब जो प्रोसेसिंग चल रही है वो तो एक बड़े लार्ज स्केल का प्लांट है, लेकिन हमने जहाँ पे फॉर द सेक ऑफ टेस्ट एनालाइजिंग, तो हमें एक पायलट प्लांट दस्तयाब होना चाहिए जहाँ पे हम स्पेशली उस सैंपल को प्रिपेयर कर सकें। या इसके अलावा सैंपल को कहाँ से हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है। देन सूटेबल कोडिंग ऑफ सैंपल्स, यूजली 3 डिजिट कोडिंग इज यूज्ड। कोडिंग, स्पेसिफिक कोडिंग करनी है, उसी बेस पे हम फर्दर सैंपल्स को प्रोसेस करेंगे। देन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ sample presentation, sensory panel member suitable for evaluation, specialized software for statistical evaluation of sensory evaluation। So ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो इस रिक्वायरमेंट्स में कंसिडर होती हैं, इनको हमने देखना है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग दी रेलेवेंट सैंपल्स। ओके, इसी तरह से सेंसरी वैल्यूएशन के लिए ख़ास टाइम इसको कंसिडर किया जाता है। लाइक 2 टाइम डिफाइन किए जाते हैं सेंसरी वैल्यूएशन के लिए। एक तो 10 से 12 बजे का टाइम मॉर्निंग में,
और दूसरा 3 से 5 बजे का टाइम इवनिंग में। सो ये टाइम बेस्ट सुटेबल डिक्लेयर किए जाते हैं फॉर दी सेंसरी वैल्यूएशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। उसके अलावा सेंसरी वैल्यूएशन में कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए कि सेंसरी वैल्यूएशन क्विकली प्रॉम्प्टली मतलब की जानी चाहिए, बजाय ये कि आप हरिडली करें, मतलब तेज़ी से यकदम, मतलब अनकॉन्शियस हो के अगर आप करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाउएवर क्विकली और हर्डली में डिफरेंस इस हवाले से कंसिडर करें कि हमने जो है इस जो सेंसरी वैल्यूएशन को हमने जल्द से जल्द सर अंजाम देना है, बजाय ये कि जल्दी में काम नहीं करना, जल्दी में मामला ख़राब होते हैं। ऑलवेज जो डाटा हासिल होता है वो एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, सो उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस होते हैं। सो इट शुड बी डन क्विकली। Okay, now we will talk about the sensory panel room. Sensory panel room की requirements क्या हैं, sensory panel room कैसा होना चाहिए, उसकी जो requirements हैं उसको हम देखेंगे। For example, sensory panel room का temperature that should be controlled. Normally room temperature को consider किया जाता है like 22 और 25 इस रेंज में सेंसरी इवैल्यूएशन रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 45 की रेंज में होनी चाहिए, ताकि हमारे जो टेस्ट सैंपल्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और इसके अलावा जो सेंसरी पैनलिस्ट्स हैं उनको भी मतलब कोई डिस्टर्बेंस किसी किस्म की ना हो। मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस फ्लेक्सिबल नहीं हैं, मतलब आई मीन टू से कि मतलब वहाँ पे वो फिजिबल नहीं है, जिस वजह से जो पैनलिस्ट हैं वो भी फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, या हमारा जो सैंपल है वो भी उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स उसके डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो these sensory panel room conditions must be considered very carefully. Then booths बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स बनाए जाते हैं सेंसरी एवेल्युएशन रूम में। ओके, जो chambers हैं, booths are widely used to provide an environment that prevents panelists from being distracted and interacting with other panelists. Unbiased evaluation, suitable lighting, booths white और masked. अब जो booths बनाने का मकसद ये है कि जो पैनलिस्ट हैं वो आपस में इस हवाले से इंटरेक्शन ना कर सकें कि एक की इंफॉर्मेशन दूसरा मतलब उसको कंसिडर कर रहा है, या एक को दूसरे से कुछ मतलब वो किसी हवाले से तज़बज़ब का शिकार है, ठीक है, या वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो उनकी वर्किंग के लिए फिजिबल नहीं है। सो इट शुड बी कंसिडर्ड। इसी तरह जो उनकी वर्किंग है वो अनबायस्ड कर बनाने के लिए हम बूथ्स को कंसिडर करते हैं, और वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू दी एवेल्युएशन रिक्वायरमेंट्स मास्क्ड लाइट होनी चाहिए, मतलब धीमी लाइट बाज का रिक्वायर्ड होती है। सो ऐसी लाइट भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, लेट वी टॉक अबाउट दी सेंसरी एवेल्युएशन पैनलिस्ट्स। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कैसे उनको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये है कि सेंसरी एवेल्युएशन पैनलिस्ट जो है वो स्मोकर नहीं होना चाहिए, उसको जो है अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट नहीं होनी चाहिए उसकी। ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल हैं फॉर दी सेंस टेस्टिंग। ओके, देन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्क्राइब प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट कर सके, मतलब एक को दूसरे से उसका फ़र्क वाजे कर सके, और प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करने का अहल हो, उसके पास ऐसी स्किल्स हों कि वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने की अहलियत रखता हो। दैन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड स्केल एट्रीब्यूट, जो उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक फ्लेवर है, उसका एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हर चीज़ को वो क्लियरली डिस्क्राइब कर सके, उनको स्केल की बेस पे बता सके, मतलब कि जी इसका फ्लेवर इस तरह का है, या इसका टेक्सचर ऐसा है, या इसका कलर इस रैंक में आता है। ये सारी चीज़ें स्केल एट्रीब्यूट्स में आती हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी एंड प्रॉम्प्टनेस, वो सेंसरी वैल्यूएशन के लिए दस्तयाब हो उस खास टाइम में। देन प्रॉम्प्टनेस, मतलब वो क्विकली रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करने के अहल हो। ये नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि सॉर और स्वीट टेस्ट में फ्लेवर में क्या डिफरेंस है। बाज़ का कुछ लोगों की ऐसी
नेचुरली बहुत ज़्यादा कम होती है कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो इट शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली. देन क्यूरोसिटी, उसकी क्यूरोसिटी हो, वो अंदर से इतना अर्ज फील करता हो कि उसके अंदर ऐसी मतलब वो एक तड़प हो कि वो काम को करने के लिए या सेंसरी वैल्यूएशन को करने के लिए मतलब वो क्यूरियस हो. देन रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, देन रिलीजियस, मॉरल, पॉलिटिकल बिलीफ्स. अब ये चीज़ें भी यहाँ पे कंसिडरेबल हैं कि उसके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम पैनलिस्ट है, एक नॉन मुस्लिम पैनलिस्ट है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जब हलाल और हराम प्रोडक्ट हम उसकी सेंसरी वैल्यूएशन कर रहे होंगे, वहाँ पे ये सारे मामला जो हैं कंसिडरेबल होंगे. ठीक है. फिर इसी तरह उसका जो है ओवरऑल उसका पर्सनल स्टेटस कैसा है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे. देन उसका एजुकेशन और एक्सपर्टीज लेवल कैसा है. फिर उसका टीवी व्यूइंग हैबिट्स, इसको हम इन दैट सेंस कंसिडर करेंगे. इसके उसकी जो है जनरल नॉलेज पे ग्रिप कैसी है, उसकी रेलेवेंट नॉलेज के ऊपर ग्रिप कैसी है, वो चीज़ों को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में कैसे डिस्क्राइब करता है. देन उसका हेल्थ स्टेटस, डेफिनेटली ही शुड बी हेल्दी एंड फ्रेश, just for the sake of delivering the information in a best and suitable way. Okay, जो पैनल लीडर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? एक्टिव इंटरेस्ट इन पीपल एंड द एबिलिटी टू अर्न देयर रिस्पेक्ट, एबिलिटी टू लीड एंड बीइंग डिक्टेटोरियल, मतलब वो चीज़ों को डिस्क्राइब करने के अहल हो. एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट रेंज एंड अवेयरनेस ऑफ की टेक्निकल इश्यूज, वो टेक्निकल मामलात के बारे में जानता हो. देन एक्टिव इंटरेस्ट इन सेंसरी वर्क एंड अ क्लियर ग्रास्प ऑफ इट्स रोल, रेलेवेंस एंड लिमिटेशंस, ये तमाम रेलेवेंट चीज़ों का उसको पता होना चाहिए. देन एबिलिटी टू एनालाइज एंड रिपोर्ट सेंसरी वर्क, ability to organize work, time and resources, तमाम relevant information, तमाम relevant चीज़ों का उसको पता होना चाहिए, तभी उसमें हम उसको सेंसरी लीडर के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है सेंसरी वैल्यूएशन में, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के भी पैनल्स बाज़ का बनाए जाते हैं फॉर द पर्पज टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स. बाज़ का आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसकी सेंसरी वैल्यूएशन करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पलिंग करवाती है कंज्यूमर से. फिर वो एक कुछ परफॉर्मास फिल करवाते हैं कि जी आप इस परफॉर्मा को फिल करेंगे, आपको इस प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा लगा, कलर कैसा लगा, ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी कैसी लगी. सो इस पैनल की कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं. पॉजिटिविटी ये है कि उस पैनल में जो जिन लोगों को हम कंसिडर कर रहे हैं उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, काम करने में इंटरेस्टेड हो. ये नहीं कि एमी प्रोडक्ट खा के मतलब साइड पे हुए चलते बने, हालांकि मकसद तो ये था कि प्रोडक्ट को खा के उसका टेस्ट या फ्लेवर हमें रियली बताते. तो ऐसी चीज़ों को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. फिर इसमें एक मसला ये हो सकता है कि उन कंज्यूमर्स की क्योंकि इस साइंस पे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई होती, ये भी एक नेगेटिविटी है. फिर जो है बाज़ का कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम आपके ब्रांड या प्रोडक्ट को टेस्ट करने के पैसे लेंगे व्हाट्सएवर. तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल हैं. तो however it's an important factor that consumer panels must be considered while the sensory evaluation of food products. देन प्रोसीजर फॉलो क्या करना है सेंसरी वैल्यूएशन के लिए? कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए उसमें. चेक दैट एवरीवन इज एबल टू टेस्ट द प्रोडक्ट्स. Everyone should use clean spoons and separate dishes. Do not allow people who are unwell, जो health wise okay नहीं है, उनको consider नहीं करना. Then serve all food samples in the same way. Label the foods with random letters or numbers. Then only allow tasters to test up to 6 samples at a time. Have water available to sip or a dry biscuit. अब सैम्पलिंग के दौरान पानी और ड्राई बिस्किट मौजूद होना चाहिए ताकि एक सैंपल को एनालाइज करने के बाद वो दूसरे पे जाने से पहले पानी थोड़ा सा पी लें, ताकि उनका पैलेट, उनकी ज़ुबान क्लियर हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट प्रोडक्ट को टेस्ट करने से पहले क्लियरली इंडिकेट कर सकें उस अगली प्रोडक्ट का टेस्ट या फ्लेवर. देन कंप्लीट द टेस्टिंग and record on sheets after each person tastes the food. Then use separate booths for each taster to ensure no influence from the other tasters. So ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं
procedures हैं that must be followed by going towards the sensory evaluation of the food products. ये उस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसने सेंसरी वैल्यूएशन करनी है, या उसके अलावा जो हमने सैंपल्स प्रिपेयर करने हैं सेंसरी वैल्यूएशन के लिए, उन सैंपल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सेंसरी वैल्यूएशन की डिफरेंट टाइप्स की, कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं सेंसरी वैल्यूएशन के लिए। नॉर्मली 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास सेंसरी वैल्यूएशन को कंडक्ट करने के लिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस टेस्ट है, फिर रेटिंग टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। इन चारों टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लाइक डिफरेंस टेस्ट में 3 फर्दर सब टेस्ट हैं, जिसमें पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट है, डुओ ट्रायो टेस्ट है, ट्रायंगल टेस्ट है। फिर रेटिंग टेस्ट में रैंकिंग टेस्ट है, सिंगल सैंपल टेस्ट है, 2 सैंपल डिफरेंस टेस्ट है, फिर मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट है। उसके बाद हेडोनिक रेटिंग है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग है, कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट है, और जो सेंसिटिविटी टेस्ट है इसमें सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट है। सो इन सभी टेस्ट की हम फर्दर देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, 1 बाय 1 हम सबको स्टडी करेंगे। Okay, first of all, let me discuss about the difference test. Number 1 is the paired comparison test. Paired comparison test में एक ही commodity के, एक ही product के 2 samples तैयार किए जाते हैं। दोनों samples का जो difference है उसको consider किया जाता है। Like prepare 2 different samples of food product you wish to test. Compare one attribute like which one is smoother. कलर बेस पे देखा जा सकता है, फ्लेवर बेस पे देखा जा सकता है। रिकॉर्ड द रिस्पांस फ्रॉम द टेस्टर्स। ओके, तो पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट करने के बाद हमारे पास ये एक परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को हम इस तरीके से फिल आउट करते हैं। लाइक नेम ऑफ पैनलिस्ट, देन प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है और किस डेट को ये कंसिडर किया टेस्ट। सो हमारे पास ये ऐसे एक ऑब्जर्वेशन होती है। लाइक यू आर गिवन 1 और सेवरल पेयर्स ऑफ सैंपल, इवैल्यूएट द 2 सैंपल्स इन द पेयर फॉर दिस एट्रीब्यूट। लाइक उसका टेस्ट चेक करना है, उसका फ्लेवर, उसका कलर चेक करना, व्हाटसएवर। इज देयर एनी डिफरेंस द 2 सैंपल्स इन द पेयर। उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? सबसे पहले सैम्पलिंग का कोड करेंगे, स्पेसिफिक कोड लिखा जाता है। उसके बाद पेयरिंग में उसको कंसिडर किया जाता है। फिर उसका एट्रीब्यूट लिखा जाता है कि जो भी एट्रीब्यूट हमने स्टडी किया उसको येस या नो की फॉर्म में, और नीचे उस पैनलिस्ट के सिग्नेचर के साथ उसको कंसिडर किया जाता है। सो इस तरीके से इसको फिल आउट किया जाता है।